اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے تاکہ آپ کو ترنت نوٹیفیکیشن ملے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ جی میں ارشاد بول رہا ہوں۔ ارشاد بھائی کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں بنارس سے۔ اچھا جو ابھی واٹس ایپ پہ شاید دوسرا نمبر دیا ہے کیا؟ نہیں میں آپ آج میں کال لگایا ہوں فرسٹ ٹائم آپ کے پاس تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے۔ کیا چیز؟ آج میں آپ کے پاس کال لگایا ہوں کون پہلے بار۔ اچھا پہلی بار۔ جی آپ کا مسلک ارشاد بھائی؟ اس سے پہلے کال لگایا آپ کے پاس۔ اچھا آپ کا مسلک؟ مسلک جی مطلب کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں ابھی کسی جگہ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں ابھی اسی کے اسکالر ہوں۔ جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ جی اچھا میں وہاں کا ایک اسکالر ہوں۔ جی اچھا اسکالر کا ویڈیو جو ہے جی اچھا تو میں آپ کا ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں جہاں سے ہم کو علم کی بھی آتی ہے وہاں میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں، تو میں سوچا کہ آپ سے بھی تھوڑا حصہ لوں، مستفید ہو جاؤں۔ جی میں کوئی اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں ہوں اور نہ میں کوئی اسکالر ہوں بھائی جان۔ نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے علم کبھی کبھی ملے تو آدمی کو تھوڑا اس کو جو حاصل کرنا چاہیے نا ہدف۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکے بھائی آپ سے جب آپ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اس پہ بہت ساری چیزیں سنی ہم نے، تو ہم نے بھی سوچا کہ کچھ چیزیں ہو سکے آپ سے ہم بھی سیکھ لیں۔ زبردست اور بتائیے حضرت کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ جی کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جی کہاں سے آپ؟ آپ کو سوشل نیٹ ورکنگ چلاتے ہیں جی؟ آپ کا ویڈیو نیٹ ورک بھی چلاتے ہیں؟ اچھا رامپور۔ آپ کا یہ یوٹیوب والا ویڈیو وغیرہ چلتا ہے آپ ہی کا ہے؟ جی اور بتائیے سب ٹھیک ٹھاک خیر ہے؟ ہاں الحمد للہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو کون سی آڈیو سنی آپ نے بھائی جان؟ ارے آپ کی وہ کیا دیوبندی بریلی کیا اس میں آپ لوگ چلتا ہے، ہم کو معلوم نہیں، بیت وغیرہ عقائد پہ کیا ہوتا ہے۔ اسکالر کس چیز میں ہیں آپ؟ میں اسکالر ہوں اس میں اسلامک اسٹڈیز کا۔ اسلامک اسٹڈیز کے اگر آپ اسکالر ہیں تو آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ جی وہ تو معلوم ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں بھائی، اتنا بھائی وہ علم تو جو ہے مسلمان ہر گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اتنا علم تو سبھی کو رہتا ہے۔ جی ہاں جیسے میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو آپ نے ایسے نہیں تو مسلک تعلق سے ہم مطلب اس پیچیدگی میں نہیں پڑھتے ہیں۔ جی دنیا کے اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں، اس زندگی میں اس کو آدمی حل کرے گا، کسی میں الجھ کے نہیں نہ رہے گا۔ اس کو الجھ کے ایسا تو نہیں کہ کھانا ملے گا یا تو دوسری چیزیں ملی۔ اسکالر صاحب یہی اصل ہے ارشاد بھائی، یہی اصل ہے، یہی مین ہے۔ پہلے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے جو کہ ایمان والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وفادار رسول ہیں، یہی پہلے اصل ہے۔ اگر کسی کے بھی ساتھ ہو لیے تو پھر پتہ نہیں کہ ہوگا کیا۔ کسی کے ساتھ بھی ہو لیے تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو اپنے جاننے والے ہیں، قریبی ہیں، علم دوست ہیں، ذی علم ہیں، ان کے ساتھ آدمی رہتا ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے اور زندگی کے جو اس سے پیچیدہ مسائل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھیے آج کل سماج میں جو ہے کتنے لوگ بہت ساری چیزیں ہیں تو کسی کو صحیح بنیادی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے کسی کی، تو وہ ایک بھوکے کو اگر کھانا کھلایا جائے وہ اور جو کہ عنقریب جس کی ضرورت وہ اس سے اصل ہے نا، ہم تو اس کو مان کے چلتے ہیں۔ ہمارے جو وہ سب بعد میں ہے، اس سب کی اصل ہے ایمان۔ ایمان تو وہ تو بات کہے یہ تو ایمان، وہ سارے کام بعد میں ہیں۔ ہاں وہ سارے کام بعد میں بھائی جان، آپ بعد والے کاموں کو پہلے لے لیتے ہو، پہلے والے کام کو چھوڑ دیتے ہو یار، یہی تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہم نے آپ اس کا اسلامی اسکالر سلام کیا، ہم نے آپ کو سلام، بھائی ایک مسلم سے جب بھائی بات کرتا ہے تو اس سے جب بات کرتا ہے تو اس سے سلام کرتا ہے اور جو ہے
उसकी खैर खैरियत मालूम होता है, तो वो इसकी इस्लाम की पहचान उससे नजर आ जाती है। तो बाकी बातें जो होती हैं वो बाद में होती ही रहती हैं। तो उससे तो इंसान आप खुद ही जानते पहचान हैं लेता कौन है सा कि दौर इंसान चल रहा मुस्लिम है? कि क्या है, उससे खुद ही पहचान लेता है उसमें। जी, इस्लामी जी, अब स्कॉलर ये है कि साहब, अगर किसी, अब इस्लाम तो एक बहुत वसी मैदान है ना, अब उसमें अगर कोई हुज्जत वाली बात है, हुज्जत पसंदी रहे, तो वो तो मैदान तो बहुत वसी है, करता ही रहेगा। जी, तो बहरहाल हुज्जत, लेकिन हम तो ये नहीं इरशाद समझते कोई साहब, किसी, इसलिए कि हम भी जो है अलीगढ़ में जितने जी, स्टूडेंट हैं, मुफ्ती हैं, मौलवी साहब हैं। मैं उसका मेंबर हूँ, लेकिन इस तरह की बातें तो नहीं है। लेकिन आपकी वीडियो में जो है बहुत ऐसी बात भी है जो 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 सुना तो खैर, इससे जो है मतलब ये है कि आदमी अगर कुछ हासिल तो भाई जो अच्छी चीज हो तो खैर हासिल कर लेगा आदमी, अगर उसका दिमाग बहुत वसी है। लेकिन कुछ रॉन्ग भी चीजें आती हैं, वो सही नहीं है, समझ रहे हैं ना? कौन सी वाली तो चीजें सही नहीं है, जरा एक चीज बताइए। अरे जैसे आप आपको कुछ लहजा भी उसमें जो है बहुत रॉन्ग लहजा है। तो वो जो अगर मान लीजिए कोई सुनना चाहेगा, उससे कुछ हासिल करना चाहेगा, तो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ठीक है, वो तो उस पर गौर कर लेगा, उसको जो तनकीदी नजरिए से देख के जो चीज सही है उसको हासिल कर लेगा, जो गलत चीज उसको हटा देगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए भी ऐसा आदमी है जो कम शऊरी इल्म है, या उसका इल्म से थोड़ा जो है ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है, तो उसको वो गलत मोटिवेट लेगा, गलत उससे जो वो ले लेगा, मैसेज लेगा, फिर उसको जो है वो बयान करेगा, तो उससे हुज्जत होगी, बहस होगी, और वो हासिल रहेगा, कुछ उससे हासिल होगा नहीं। तो ये है कहने का मतलब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस नाचीज की गुफ्तगू सुनी जाती है, समझे हजरत? सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मतलब उतनी जगहों के नाम तो मुझे भी याद नहीं है जहाँ जहाँ से कॉल आता रहता है, जहाँ से दुबई है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान तौबा कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं। पहले जो वहाबियों देवबंदियों के साथ उठते थे, बैठते थे, खाना पीना करते थे, काम करते थे, वो सब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। उन लोगों के साथ उठना बैठना खत्म, उनके साथ खाना पीना खत्म, समझे? और यहाँ तक बात है, यहाँ तक मुझे बताते हैं कि उठना बैठना तो दूर की बात, खाना खाना तो दूर की बात, हम उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते जो गुस्ताखे रसूल है, जो हमारे नबी के दुश्मनों के साथ रहते हैं या हमारे नबी के कमाल का इनकार करते हैं। जी, आप तो अच्छे स्कॉलर हैं, फिर भी आप मतलब बात नहीं समझ पा रहे हैं। बात क्या समझे, उसमें समझने वाली क्या चीज है? कुछ समझने आप वाली चीज स्कॉलर है हैं तो आप बोलते होंगे ना, मतलब कुछ बोलते होंगे ना वहाँ। हाँ, तो स्कॉलर हैं जो कहा ना हम जो बातें करते हैं वो समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन में समाज कैसे आगे बढ़ा। देखिए, समाज को ही आगे बढ़ाओगे कि दीन को भी आगे बढ़ाओगे, ईमान की भी कुछ हिफाजत करोगे? हाँ, तो दीन अव्वल है ना, तो दीन अव्वल है तो पहले ईमान को बचाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको दीन को लेके फिर सारी चीजें आगे बढ़ती है ना। अच्छा, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या मानते हैं? आला हजरत जी क्या मानते हैं जी? अब ये कैसे हम बताने क्या अब जो किताबों में जो हम जो अपने हिसाब से मुताला करते हैं किताबें, हम कहा ना कि समाजी उलूम के लिहाज से हम किताबों मुताला करते हैं। अभी सबों को मानना ना मानना, इसको मान लेने से हमारा क्या हो जाएगा? आप मुफ्ती साहब हैं कि मौलवी साहब हैं? फिर मुफ्ती हूँ ना मौलवी। मैंने कहा मैं एक स्कॉलर हूँ ये इस्लामिक स्टडीज का। जी, तो उसी मैं इदारा तहरीर तस्नीफ, वहाँ हमने जो एक कोर्स किया है, मुहक्किक कोर्स होता है, वो उर्दू लिटरेचर में होती है, उसको मैंने स्टडी किया है उर्दू और अंग्रेजी मिला के। जी, तो अभी तो अलीगढ़ में मेरा जो है, मैंने जो है 2018 में जो है हमने जो है GRF क्वालिफाई किया था, और इस वक्त जो है मेरा वो स्कॉलर का जो है तीसरा साल रनिंग है। जी, तो हम जो है ये है कि हम लोग एक जमात, हमारी एक जमात, उससे हम लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं। इसी तरह मतलब बातों में वो चीजें नहीं हमारे देते हैं अपनी बातों में कि उसको दूसरी कौम जो है उसको तकलीफ पहुंचे। तो तकलीफ वाली बात जहाँ जुमला होता है तो उससे हम लोग जो है उसको ज्यादा जो है आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम
جو چیزیں ہیں بتانے کی علمی چیزیں ہیں. اچھا یہ بتائیے سماج کو کیسے آگے بتائیے سماج کو آگے بات میں بڑھائیے. جو آپ کے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا چیز؟ جو آپ کے اور میرے نبی کی شان میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو بھائی وہ تو اس کی سمجھ کا پہلا اگر نہیں ہے تو ہم اور آپ اس کو یہ اصلاح کیا جائے, اس کو بتایا جائے. پھر آپ کو پوچھ رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ کہا ہی نہیں کہ اس کی سمجھ ہے اور اس کی سمجھ ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو. کیا یہاں سے حجت کا دروازہ کھلتا ہے نا بھائی, تو ہم وہی کام نہیں کریں نا کہ حجت کا دروازہ کھلے. اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کوئی اور بات ہے تو اس سے تو بحث ہوگا نا. تو بات ہم کو ایک سینس میں کرنی چاہیے کہ جہاں بحث ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ محبت کرتے ہوں گے؟ محبت تو کرتے ہی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ایسے لوگوں سے بچا جائے جن کا خیال یہ ہے معاذ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے. کس کا بچنا چاہیے, کس سے بچنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن کا یہ نظریہ, یہ عقیدہ ہے, جن کا یہ گمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے. تو ان کا خیال اگر لانا ہے تو ہمارے پاس اگر علم ہے تو اس وقت میں علم کو سمجھائیں گے نا. آپ بتائیں گے بھائی آپ حضور کا خیال کرتے ہیں نماز میں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. اچھا کس جگہ پہ؟ ہاں کس جگہ نماز میں, ایمان میں بیان کیا جاتا ہے بھائی. جہاں بھائی جب ان کا نام لیا جاتا ہے ان کو درود دیا جاتا ہے, سلام بھیجا جاتا ہے. اور جو کسی مجلس میں اگر ان کا نام آ جائے تو ان کو درود بھیجا جاتا ہے, ان کا ذکر آ جائے تو درود بھیجا جاتا ہے. اور کیا پوری نماز میں ہی حضور کا خیال رہے گا جناب, میرا تو یہ ماننا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ گویا تم اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, جیسے میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں. تو صحابہ کرام نے جیسے جیسے حضور کو دیکھا ویسے ویسے صحابہ نے نماز پڑھی. جی ہاں صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ کو نیت کیسے باندھنی ہے, آپ کو نیت باندھنے کے بعد ہاتھ کہاں رکھنے ہیں, کیسے رکھنے ہیں, کتنے جو ہے بیچ کا فاصلہ رہنا چاہیے, کتنے انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے آپ کے قدموں کا, آپ کے پاؤں کا, دونوں پیر کتنے دوری پہ ہونا چاہیے, 4 انگل کی دوری ہونی چاہیے. پھر جب آپ جو ہے قرات کریں گے تو کیسے کریں گے, اچھے انداز میں کریں, اچھے لہجے میں کریں, ہر ایک چیز بتائیے. رکوع میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے, سر اور پیٹھ کو کس طرح برابر رکھنا ہے. یہ سب حضور کا ہی تو بتایا ہوا طریقہ ہے. تو ہم تو جگہ نہیں آئے گا, بس مجھے یہ بتایا جائے, آئے گا نا ہر جگہ آئے گا مومن کو. مگر اگر مان لو کہیں نہیں لایا بندہ, کہیں نہیں لایا وہ اپنے اٹکل سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ضرور کرے گا. ہاں کرے گا, بالکل کرے گا بھائی. ان کا تو نام جہاں ذکر رہے گا ان کا حضور کا خیال آئے گا تو ادب سے ہی آئے گا. ہاں ادب صحیح آئے گا, صحیح ہے. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جو تعظیم نماز میں ملحوظ ہوتی ہے یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. بزرگ کون بزرگ سے مطلب بزرگ سے مراد آپ کی جناب رسول اللہ ہمارے بزرگ ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں وہ تو ہمارے جو ہے جی, ہاں تو ہم کو ان کی تو عقیدت کر کے ہی چلنا ہے نا جی. ہاں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کون کون بزرگ آپ کس نے اسکالر بنایا ہے, کس نے آپ کو اسکالر بنا دیا؟ اسکالر بنتا کوئی, وہ تو آدمی جو ہے اپنے علم سے جو ہے اپنی آگے بڑھتا ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا. تو کوئی ضروری ہے کہ آپ کو لگے, ہر آدمی بھائی اس دنیا میں انسان جو ہے سوچنے کا نظریہ, سمجھنے کا نظریہ سب کا الگ الگ ہے نا. کوئی ضروری کوئی ہے کہ جو چیز آپ کے نظر میں آ جائے کہ نہیں لگ رہا ہے تو ایسا کوئی ہے کہ وہ چیز وہ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات آپ اسکالر تو واقعی ہوں گے, آپ اسکالر تو واقعی ہوں گے, مگر سب کو ملا کے چلتے ہوں گے. ملا کہا تو ہم نے کہ جو ہے کہ جو جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی وہاں مدد کیا جائے, جہاں جس کی جو اینگل ہے. چلیے مجھے بہت ضرورت ہے مدد کی, میں بہت پریشانی میں چل رہا ہوں, چلیے میری مدد کیجیے. کیا مدد کریں آپ کی؟ پیسے سے پریشان ہوں. پیسے سے؟ ہاں تو ارے مدد کیجیے میری, سب آپ کمائیے.
تو اس کا ایک نظریہ ہے بھائی انسان جو بھائی میں نے کھل کے بول دیا مجھے پریشانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی بولنے کی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, بولنے کی صلاحیت دی, تو یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے رزق کے لیے انسان کوشش کرے. ارے بھائی آپ کو ثواب چاہیے نا, آپ کو ثواب چاہیے نا, ثواب چاہیے تو آپ میری مدد کیجیے. میں پریشان حال ہوں, آپ میری مدد کیجیے. تو یہ بھی تو ایک طرح کی مدد ہے نا, ہم آپ کو ذریعہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو اپنے جو ہے علم کے لیے جو ہے اس کی رزق کے لیے انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوشش تو میں کر ہی رہا ہوں, کوشش تو الحمدللہ میں کر ہی رہا ہوں. آپ جو کام آپ کر نہیں سکتے, وہ کام بار بار زبان پہ کیوں لا رہے ہیں آپ؟ کہاں نے آپ کو اسکالر بنایا ہے یار؟ یہ کر نہیں سکتے ہیں. ہم نے آپ نے کہا کہ کسی کی مدد کرنا بھی ثواب ہے, کسی کو ایسا کرنا بھی ثواب ہے, کسی کو پانی پلانا بھی ثواب ہے. ارے یار تو میں پریشان حال ہوں, آپ میری مدد کر دیجئے. تو یہ تو آپ کو راستہ بتانا بھی 10-20-50,000 سے میری مدد کر دیجیے, بات ختم ہو گئی. آپ نے کہا کہ جو ہم نے مدد کر دی ہے تو آپ کو ہم نے راستہ بتایا نا, تو راستہ بتانا بھی ایک طرح کی مدد ہے نا. اس کو مدد میں نہیں مانتے, مدد کا حصہ نہیں مانتے ہیں کیا جناب؟ میں بھی الحمدللہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں, میں بھی جہنم کے راستے سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی بولتا ہوں کہ جہنمیوں کے ساتھ مت رہو, اور آپ کو برا لگتا ہے. مفتی ہارون ندوی کا برا حال کر دیا تھا میں نے. وہ بول رہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. فون کاٹ کے کیا تھا وہ, آپ نے شاید آڈیو سنی ہوگی اس کی. مفتی ہارون ندوی جو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں پیپر کا مالک ہوں, اور فلاں پریس کا مالک ہوں, اور فلاں یونیورسٹی کا مالک ہوں. بہت لمبی چھوڑ رہا تھا. اچھا ہاں سنی ہوگی آڈیو آپ نے. وہ آپ کا یا تو ساتھی ہوگا, یا پرنسپل ہوگا, یا استاد ہوگا, یا جو بھی, بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہو گئی وہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی نام لیا تھا. کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں وہاں پہ. جانتے ہو اللہ جانے ندوی کو؟ جانتا, نام تو ان کو سنا ہوا ہوں, لیکن اس وقت وہ شاید. ارے تو یار آپ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسکالر ہیں, اور وہ بھی مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ہے وہ پرنسپل اور پتہ نہیں استاد ہے, کتنا بڑا استاد ہے. وہ ڈاکٹر کو وہاں درس دیتا ہے, پڑھاتا ہے. آپ ایسے بندے کو نہیں جانتے جو آپ کا وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ. ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف چھوٹا سا مدرسہ, کوئی کالج نہیں ہوتا ہے. وہ کم سے کم 20 کلو میٹر اس میں پھیلا ہوا ہے. تو وہ الگ ڈپارٹمنٹ میں ہے. مجھے نا نام بھی سنا ہے وہ. اب لیکن جو ہے یہ کہ سب سے ملاقات نہیں ہے, لیکن نام کو ان کو جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے ہیں جی. تو ان شاید عربی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں کہیں تو اسکالر, یہ عربی ڈپارٹمنٹ. وہ بول رہا تھا میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. ڈاکٹر کو پڑھاتے ہیں, کس کو پڑھاتے ہیں, وہ تو کہ آپ سے بولے ہوں یا کتنی سچائی ہے تو اس کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں. تو آپ ہی آپ سے بات ہوئی, آپ ہی زیادہ بہتر جانیں گے جی. لیکن بات یہ ہے کہ جو انسان فیصلہ کرنی ہے تو وہ ابھی جو سچائی ہے وہ تو سب کو بتائے گا نا. آپ کو بتائے گا, ہم کو بھی بتائے گا, اس میں تو کوئی بات ہے نہیں. بھائی جان ایک بات کہوں اسکالر صاحب؟ جی بولیے. دیکھیے اپنے ایمان کو بچائیے, ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کے اور میرے نبی کے دشمن ہیں, جو میرے اور آپ کے نبی کے کمال کو گھٹاتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بتاتے ہیں, جو رسول پاک کے کسی کمال کو تسلیم نہیں کرتے اور حضور کے کمال کو گھٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ بچیے, دور رہیے. تو ایسے لوگوں ان کو بتایا جائے, سکھایا جائے نا. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, پہلے آپ سمجھ جائیے, پھر دوسرے لوگوں کو آپ سمجھائیے. آپ تو اسکالر ہیں. بالکل ہم سمجھائیں گے, لیکن ہم تو اسی لیے تو آپ کا ہم نے یہ ویڈیو دیکھا ہے. ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا آپ سے کچھ گفتگو کیا جائے, اسی لیے تو. اچھا کہ بھائی ہم بھی آپ سے کم کچھ سیکھیں, ہمارے اندر بھی کچھ آئے, ساری چیزیں نالج ہو. تو انسان کو ایک دوسرے سے ہمیشہ پوری زندگی 70-80 سال کی زندگی ملی ہے, سیکھنے کے لیے ملی ہے نا, سکھانے کے لیے. میری جو عادت ہے, ہاں ارشاد بھائی, میری جو عادت ہے جی عادت نہیں, میں سیدھا سمپل بولتا ہوں. شارٹ کٹ میں آپ کو میں
देवबंद के 4 काफिर पक्के काफिर। देवबंदियों के मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने कुफ्र किया। वो तो मतलब ये जो आपने बात कहा उससे हम कह रहे हैं, जो अभी आपने बात कहा कि जो है और आप समझ जाइए, और जो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका नजरिया जो है बचने की क्या जरूरत है? हम बचेंगे तो उनकी इस्लाह कैसे होगी? फिर अल्लाह ताला ने हमको जो इल्म दिया है उसकी पूछताछ करेंगे ना। अल्लाह ताला कहेगा हमने आपको इल्म दिया था कि आप जो गुस्ताखे रसूल थे उनको आपने क्यों नहीं सिखाया? आप बोलने की सलाहियत दी थी, दानाई दी थी, तो अगर उनको हम नहीं समझाएंगे, अगर वो जाहिलियत की ढक्कन में डूबे रहेंगे तो हमको जो है उनको समझाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ वही आप कीजिए। समझाएंगे तो उसकी हमारे लिए पकड़ भी हो जाएगी। अरे जनाब, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जनाब, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। आपने वही कीजिए। गलत कहा है पहले। नहीं, आप एक मिनट, आप मसला के आला हजरत पर गामजन है क्या? आप मसला के आला हजरत को फॉलो करते हैं क्या? बोलिए। थानवी ननौतवी भी गंगोही को काफिर मानते हैं क्या? बोलिए आप। मैं वही तो कह रहा हूँ। नौतविया मेठ भी गंगोही को काफिर मानते हैं? बोलिए, अभी मैं समझ लूंगा 1 मिनट में। बोलिए। हमने आपको पहले बात साहब नहीं देखिए भाई, कुछ नहीं, आप मुझे बता दीजिए। मैंने जो बोला है 100% मैंने सही बोला है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, मौलवी रशीद अहमद गंगोही को काफिर मानते हैं या मुसलमान? तो आप सही बोल रहे हैं तो हमने आपको गलत भी नहीं कहा ना। अरे भैया, तो आप कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि अलग हो जाइए। मैंने बिल्कुल सही कहा है। तो हमने आपकी बात को रद्द कोई किया, आपकी बात की तारीफ की है ना। तो हम समझाएंगे कैसे भाईजान? मैं भी समझा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह राह रास्त उसमें नेगेटिव नहीं होना, उसमें जो है हाइपर नहीं होना, अग्रेसिव नहीं होना। तो बस अपनी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी 300 साल की पूरी जिंदगी जो है लोगों को समझाने में, इस्लाही में लगा दी है। बल्कि कुरान में जितनी सारी चीजें हैं, कुरान में जितनी आयतें हैं, बहुत सारी आयतें थी, ये सारी पूरी जिंदगी जो है अपनी उम्मत की कुर्बान कर दी, समझ लीजिए। इतना कुछ कुर्बान किया है, जब आपके लिए रसूलुल्लाह ने इतना कुछ कुर्बान किया है, आपके लिए इतनी फिक्र की है, तो आप रसूलुल्लाह की जो है फिक्र नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह? खामोश रहिए थोड़ा सा स्कॉलर साहब, जी बोलिए। समझने की सलाहियत रखें, क्योंकि आपकी बात को भी अगर लोग नहीं सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा। जैसे कि आपने फिक्र की है और है ना, तो आप भी फिक्र कीजिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रसूल पाक के दीन की। जी बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटाने के चक्कर में लगे हैं, जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को घटाने के चक्कर में लगे हैं, जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, समझे? तो ऐसे लोगों को आप समझाइए, बताइए, सुधारिए, और जो अवाम अहले सुन्नत है उसको भी रोकिए कि इन लोगों के पीछे मत पड़ो। जो जमात वाले आते हैं, जमात में कभी मत जाओ, क्योंकि जमात वालों की नमाज नहीं होती। जमात वालों की नमाज इसलिए नहीं होती कि उनका नजरिया, उनका अकीदा यही है रखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर बताते हैं वो लोग। उनकी किताब में लिखा है, किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम। हाँ, इन लोगों का नजरिया है माज़अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ माज़अल्लाह। तो सभी मिलने वाले हैं। क्या माज़अल्लाह आपका रसूलुल्लाह के लिए यही नजरिया, यही अकीदा है? एक मिनट, क्या रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए आपके नजदीक? हमने ये कहा था। अरे आप मतलब सभी मिलने वाले हैं, तो बताइए। सुनिए मतलब स्कॉलर साहब आपके सामने हम आपकी कई बात कि जो मौजूद हो रहा है आप उससे समझ जाए और दूसरी बातें शुरू कर दे रहा है। एक बात आपने कहा कि हम आप जो है समझ जाइए, और जो इनसे बचिए, तो समझा रहा हूँ। तुम वहाबी देवबंदी को भी मुसलमान मानते हो, जो देवबंद के 4 पक्के काफिर हैं, उनके कुफ्र में जो शक्कर है वो भी हमने देवबंदी बरेली, हमने आपसे बात स्टार्टिंग में शुरू की बरेली की बात मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से सही बात करता हूँ जो मेरे नबी का गुलाम है। आप सिर्फ अकेले मोहब्बत करेंगे, जो भटके हैं उनको इस्लाह भी तो आप करेंगे। उसकी वही तो काम कर रहा हूँ मैं, आपकी भी इस्लाह करना चाह रहा हूँ। आप इस्लाह कराना कब चाह रहे हैं? आप तो अपने आप को समझ रहे हैं।
मतलब हम तो आपकी बात की तारीफ नहीं कर रहे, हम आपकी बात की जो है नफी नहीं कर रहे हैं ना, आपकी बात की नफी तो कर नहीं रहे हैं हम तो आपकी बात की तारीफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सही बात की सच्ची बात की नफी हो ही नहीं सकती। और करोगे तो आप बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वो रिकॉर्ड एक अलग बात है। जो भाई हम आपके जो फोन किए हैं तो आपकी बातें देखा, आपकी बातें सुना, उसमें जो है कुछ बातों का भी लोगों का है और कुछ बातों का जो है उसकी पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। हर एक बात का दो पहलू होता है। अच्छा, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। मेरी बातों में कौन सी बात नेगेटिव है वो बात दिखाइए, मैंने कौन सी बात नेगेटिव बोली है? हमने आपको पहले बताया क्या कि जब आदमी बात करता है तो बात करते करते जो है जो गिरफ्ती हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उससे जो है बात से पकड़ी नहीं होती है। अरे यार वो तो एक भाई गुस्से की बात किया नहीं जाता इंसान को। हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, कोई रसूलुल्लाह का दुश्मन अगर हमारे सामने कोई हमारे नबी की जो है शान को घटाएगा, हमारे नबी के कमाल को जो है तस्लीम नहीं करता है, हमारे नबी के कमाल को ऐसा पेश करता है जैसे कि एरे गेरे नत्थु खेरे की बात को पेश करते हैं, तो यार हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हमारे नबी के किसी कमाल का इनकार करता है, हमारे नबी के कमाल का इनकार करेगा और हमसे भी जो है माज़अल्लाह इनकार कराने की कोशिश करेगा, तो गुस्सा नहीं आएगा? आप बताइए, मैं आपके वालिदैन को बुरा भला कहूँ तो आप सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे इसलिए कि अगर मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है जनाब। अगर मैं आपके वालिद को बुरा भला कहूँ और आपने कहा कि हाँ बिल्कुल सुनेंगे, तो फिर आपको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं है। तो बिल्कुल सुना नहीं, हमने बिल्कुल कहने का मतलब इसकी भी तो नजरिया बनाया यार। स्कॉलर साहब क्या बोलते हो यार, स्पीच पे क्या बोलते हो, क्या स्पीच देते हो यार, क्या स्पीच देते हो? आपने ये भी बताया ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं मानता है वो इनकार कर रहा है, तो उसकी हमें इस्लाह करनी है, इस्लाह नहीं करेंगे इसकी। अरे भाई मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप इस्लाह नहीं समझ रहे हैं। हम तो आपकी बात समझना नहीं चाह रहे, तो आपकी इस्लाह की बात तो हम मान रहे हैं ना, हम आपकी बात इनकार नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन आपने मान के भी कौन सी दी है यार? आपने मान के एक बताइए मेरी, कौन सी बात को आपने माना है? आपने कहा कि आपने मोहब्बत करते हैं, हमने कहा बिल्कुल मोहब्बत करते, क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे? ऐसा दावा तो सब करते हैं, ऐसा दावा तो वहाँ भी देवबंदी हर एक करता है। अब हर बात तो अभी देवबंदी में किया, जनरल स्कॉलर की बात कीजिए ना, देवबंदी बरेली की खोज में क्यों जाते हैं? अरे मैं तो इसी का करता हूँ ना। अरे आप मेरे पास जो कॉल करने आए किस वजह से आए? किसी भाभी देवबंदी की कॉल ही सुनी थी ना आपने? सुना था तो मतलब भाभी देवबंदी की सुनी थी ना, तो मैं तो यही करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोमिन भाइयों को कीजिए ना, आप जाना दूसरे की, देखिए हर एक इंसान, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस चीज की गुफ्तगू करते हैं जब कहीं जो चीज देते हैं, हम किसी इज्जत वाली गुफ्तगू नहीं करते। क्या नहीं करते आप? अच्छा ये बताइए, पसंदी वाली जो बात आती है, अच्छा एक मिनट आदमी कौन में ये भी कहा गया है ना, एक मिनट हुज्जत मत कीजिए किसी बात को, जहाँ हुज्जत हो तो उसकी जो हट जाइए, तो दूसरा आदमी अपना कोई बदल पैदा कर दीजिए, अपने बदल के जरिए उसको समझाइए। आपने हमेशा ठीक हमारी सुनिए, बोलिए दोनों को, आप बोलेंगे तो हमारे पास नहीं आएगी, हम बोलेंगे तो आपको बात नहीं आएगी। वही डिस्कस करने का तरीका है कि आप बोल रहे हम सुन लें, हम बोले आप सुन लें। आप एक बात बोलें तो जो फिर इतना आप उसमें बहस करने लगे तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो हमारी बात पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बोलिए, आपकी बात भी हम सुनेंगे, और फिर उसके बाद जो आंसर बाद में नहीं देंगे, फिर आपका जो आंसर है वो आप दीजिएगा, फिर उसमें जो रद्द अमल होगा आप उसमें इज्जत कीजिएगा, फिर हमारा जो रद्द अमल होगा हम इज्जत करेंगे। तो ये तरीका होता है बात करने का। तो आप ये कह रहे थे कि जो सुप्रीम को जो यूजर हो तो जो है उसको ऐसा होना चाहिए, उसको उससे नहीं बोलना चाहिए, उससे दूरी बनाना चाहिए। भाई उसकी इस्लाह भी तो करनी चाहिए ना, इस्लाह कौन करेगा? इस्लाह के लिए तो इसीलिए तो हमारे मदारिस बने हैं, हमारे मकातिब बने हैं कि जो गैर शऊरी लोग उनकी इस्लाह किया जाए, वो भी तो जरूरी है। इस्लाह नहीं करेंगे तो हमारा हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह ताला कौन में आप तो खैर आलिम है, आपसे हम कुरान की याद किया पैसे फमैया अमल मिसाल जर्रा बराबर भी देना, जो शुभ करेगा वो भी देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा।
तो मतलब इतना कहे कि उनसे नहीं बोलो, इनसे नहीं बोलो, तो ये हमारे फर्ज अदा नहीं हो जाएगा। फर्ज की अदायगी तो हमें करनी है किसी भी हाल में। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं, स्कॉलर किसने बनाया है यार? आपको स्कॉलर किसने बनाया है? ये बात ही नहीं हो रही है, इस मौके पे बात ही नहीं है, इस मौके पे बात ही नहीं है। देखिए कोई बनाता पहले नहीं, वहाबी देवबंदी का और अहले सुन्नत वल जमात का फर्क समझना चाहिए। मैंने अकीदा अपनाने को मना किया कि वहाबियों देवबंदियों का अकीदा मत अपनाओ, उसको मैंने बोला है कि वहाबियों देवबंदियों के साथ मत रहो। आई समझ में? सोहबत से बड़ा असर पड़ता है, जानते हो स्कॉलर साहब? इस बीच में बोला होगा कभी न कभी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है, कभी न कभी बोला होगा आपने स्पीच में। जब आप स्कॉलर हो तो जरूर बोला होगा। सुनिए, खामोश रहिए, इतनी देर मैंने आपकी बात सुनी है। लोहार के पास बैठने वाले के कपड़ों पर दाग जरूर लग जाता है, चाहे वो काम करे या ना करे। इतर वाले के पास बैठने वाले के कपड़ों में खुशबू जरूर आ जाती है, चाहे वो इतर लगाए या ना लगाए। समझे? इसी तरह गुस्ताखे रसूल के पास बैठेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई बदअकीदगी जरूर आ जाएगी, जिससे कि उसका ईमान बर्बाद हो सकता है। समझे जनाब स्कॉलर साहब? आप बोलिए, हम आपकी बात में नहीं बोलेंगे, पूरी बात सुन के बोलेंगे। हमारे तो इस बात को मैंने कहा कि वहाबियों देवबंदियों के जो नापाक अकीदे हैं उनसे बचिए। वहाबियों देवबंदियों के जो गंदे और नापाक घिनौने जो इनके नजरिए और अकीदे हैं, जो इन्होंने गड़े हुए हैं, उन अकीदों से आप पाक और साफ रहिए। उस चीज को मैंने बोला है, ना कि मैंने ये कहा कि इनकी जो है इस्लाह मत करो। इस्लाह तो मैं तुम्हारी कर रहा हूं, तुम इस्लाह कराना नहीं चाह रहे हो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और तुम बार बार वही कह रहे हो कि ये क्या वहाबी देवबंदी है, ये क्या वहाबी देवबंदी है। अरे पहले वहाबी देवबंदी का फर्क समझो कि क्या है क्या। समझे जनाब? ये वहाबी देवबंदी वो गुस्ताखे रसूल है, वो गुस्ताखे रसूल है कि जो गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा सख्त अजाब मिलेगा इसको। गैर मुस्लिम जो है वो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, उसको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम है क्या, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत है क्या, नहीं मालूम है। मगर ये वहाबी देवबंदी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए भी, हुजूर का कलमा पढ़ के, दीन इस्लाम की शान व अज़मत को जान के, फिर भी ये हमारे नबी के जो है कमाल का इनकार करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को तस्लीम नहीं करते, हमारे नबी के कमाल का जो है एकदम इनकार कर देते हैं। मगर जिन जिन कमालों का इनकार करते हैं वही सारे कमाल अपने घर के बुजुर्गों के लिए तस्लीम करते हैं। ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है, ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार नहीं है, ये कहते हैं माज़अल्लाह के खुदा झूठ बोल सकता है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब माज़अल्लाह खुदा भी कर सकता है। अरे ये मुसलमानों का अकीदा है, ये कुरान का दिया हुआ अकीदा है? ये सब कुरान के खिलाफ है। ये कहते हैं नबी के बाद कोई दूसरा नबी पैदा हो फिर भी खतमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा माज़अल्लाह। ये देवबंदियों का अकीदा है माज़अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है माज़अल्लाह। तो क्या ये सब आपके नजरिए हैं, ये सब आपके अकीदे हैं? बताइए स्कॉलर साहब। बोलिए, अब आपकी बात तो तकलीफ है, तब हम बोलेंगे। बोलने के लिए तो और बहुत कुछ है, मगर सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको एक नमूना दिया है। ये जो मैंने बहुत कुछ बता सकता हूँ, बस ये थोड़ा सा जो मैंने आपको ये निशाना दिया है जरा। अच्छा, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कि हुजूर के बाद, ठीक है, यानी आपके अब विसाल के बाद अब इस टाइम कोई नबी पैदा हो गया, ठीक है, समझे, नबी पैदा हो जाए, फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और जमाने के एतबार से हुजूर की कोई फजीलत नहीं माज़अल्लाह। हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है माज़अल्लाह। क्या ये मुसलमानों का नजरिया है, मुसलमानों का अकीदा है? इसको समझाया जाएगा, इस्लाह की जाएगी ना, अगर ऐसा। हाँ, बिल्कुल इस्लाह की जाएगी। मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए। आप खाली हमारी पहले आप समझ जाएंगे, फिर आप बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों को समझा देंगे। बिल्कुल समझा देंगे। जी जी जी, इसीलिए पहले मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, ताकि मेरे स्कॉलर इरशाद भाई को अगर समझ आ गया तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बड़ी स्पीच पे खड़े होते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सुधार देंगे। जी, मेरी नेक नियत यही है कि पहले आप समझ जाइए, फिर इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंटों को आप समझा देंगे। समझाने भाई तो कितना बड़ा इंसान जो है आलिम हो जाए, कितने बड़ा इल्म हो जाए,
कितना बड़ा भी जो है उसके अंदर जो है नॉलेज पर्सन हो जाए तो अब तो ये अपने आप को बहुत बड़ा नहीं, अपने वो एक तरह से वो जो है वो अब नहीं है दूसरे जितने जिसके नजरिए में वो पढ़ा है, जिसके व्यवसाय में वो पढ़ा बढ़ा है, जो उसको उस्ताद है, टीचर हैं, तो उसको वो छोटा ही है, तब भी बहुत बड़ा नहीं होगा उसके। जी वो बात कहेगा तब भी हमें उसकी बात मानी है। कितने लोग थोड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं, कुछ अरबी किताबें मुताला कर लेते हैं, तो वो उसी पे जो है अपने मसले मसाइल का वो अंबार लगाते हैं और वो बात से हुज्जत करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं बजाय हुज्जत करना तो आप सीख गए, चलिए इससे हुज्जत से बेहतर है कि उसकी इस्लाह किया जाए ना। हुज्जत से भी इल्म बढ़ता है, इल्म में इजाफा होता है। तो हाँ, तो इल्म में तो इजाफा होता है, लेकिन ऐसे लोग जो है जो इल्म दीन का जिनके अंदर मुताला नहीं है, किताबों का मुताला नहीं है, तो उनसे हम हुज्जत करेंगे तो सवाल जो है नहीं के वक्त का वहाबी कुछ नहीं मिलेगा ना। इरशाद भाई ये जो लोग हैं ना वहाबी देवबंदी, हाँ, ये जो वहाबी देवबंदी लोग हैं ना, हाँ, ये स्कूल के स्टूडेंटों को फंसाते हैं। ये उन लोगों को फंसाते हैं जो बेचारे कम इल्म है, जिनको मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, जो बेचारे अपने कारोबार में घिरे हुए हैं, गिरफ्तार हैं। समझे भाईजान? जो काम वाले लोग हैं, जो आलिमों से दूर रहते हैं, हाँ, ये कम इल्म लोगों को तो बहकाते हैं यार स्कॉलर साहब। जी तो इनकी इस्लाह करना तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल इस्लाह करना चाहिए। आप देखिए इरशाद भाई, आप माशाल्लाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं कि जिसका नाम हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में इल्म का काम लिया है हजरत, उसका काम है कि जो भटके हुए हैं उनको बताया जाए, जो गलत राह पे जो किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। आपसे मेरी ये तवक्को है, मेरी उम्मीद है कि शायद आप भी अपने स्टूडेंटों को, अपने स्कूल के, अपने यूनिवर्सिटी के जो आपके स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, आप उनको भी जो है ये सबक पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शायद आप करें इस काम को, अगर आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो। हर वो काम करता हूँ जिससे दूसरों की इस्लाह हो और जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक बात बताइए, उसको इल्मी गुफ्तगू करता हूँ, जबान से भी, और उसकी तहरीरी गुफ्तगू भी करता हूँ। उसकी तहरीरी गुफ्तगू, खाली इल्मी गुफ्तगू नहीं करता हूँ, तहरीरी गुफ्तगू भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत दिल खुश हुआ इरशाद भाई आपकी ये गुफ्तगू सुनकर कि आप तकरीरी और तहरीरी दोनों गुफ्तगू करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। और हमारे मज़ामीन भी आप शायद पढ़े हैं, नहीं है, इरशाद के नाम से करते हैं जी। डॉक्टर आप मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, एक बात और बता दीजिए मुझे जी। अब यहाँ ईमान को रख के मैं आपसे बोलूंगा, आप ईमानदारी के साथ बोलिएगा। दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी जमात से जुड़ा ना हो। आप किस जमात से जुड़े हैं? आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, कादियानी हैं, किस या मिनहाजी हैं, किस जमात से जुड़े हैं वो आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी के साथ। ईमान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा एक बात, आपने नहीं गौर किया शायद। देखिए मैंने वो सब सुन लिया, मगर मैं एक बात, ये कड़वी सच्ची बात कह दूं कि कोई बंदा कोई भी हो, ठीक है, किसी ना किसी जमात से जरूर जुड़ा रहता है। और ये तो मतलब दीन का काम तो दीन का, दुनियावी आदमी भी है ना, दुनियावी तो किसी ना किसी सियासी पार्टी से जरूर जुड़ा रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई बंदा खाली नहीं है, एक तरफ जरूर होता है कहीं। का मेंबर हूँ, एसआईओ यूनिट चलती है हमारे अलीगढ़ में, एसआईओ यूनिट चलती है। एसआईओ अब मैं समझ गया, अबुल आला मौदूदी की जमात से जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी से, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी से जुड़े हैं ना, जो अबुल आला मौदूदी ने बनाई है जी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मैं जो कह रहा हूँ पहले उसका जवाब दे दीजिए। उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समझ गया, खुल के बताइए मुझे, खुल के बताइए। अब आपके अभी कहिए कि आपके सेंस में हम जवाब दें तो वो एक अलग बात हो गई। आप एकदम सेंस में आपके जवाब नहीं देंगे ना कि आप मैं तो समझ गया, मगर मैं कुछ और चाह रहा हूँ ना आपसे। क्या चाह रहा हूँ, जैसे जमात इस्लामी है जी, जमात इस्लामी जमात से जुड़े हैं ना आप? हाँ हाँ जुड़े हैं, वही तो बताया ना। इसका बानी कौन है? मौलाना अबुल आला मौदूदी है ना? हाँ मौजूदी है। हमने कहा भाई वो इल्म थे, उनकी किताबों का मुताला, और जो भी इल्म है, जहाँ से अच्छी चीजें मिले वहाँ से इंसान मुताला करता है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत मतलब ये। अच्छा, अब एक बात कहूँ मैं भाईजान इरशाद भाई, आप मुझसे उम्र में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, मगर बस एक नहीं आपसे हाँ हो सकता है, हमारी
इस वक्त उम्र जो है 31 चल रही है, रनिंग है 31 रनिंग है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भाईजान बोल देता हूँ मगर आपकी कितनी है? जी मेरी भाई आप तो आपसे हमसे आधी है। भाई आप तो माशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला ने आपको जबान की फसाहत और बलागत बहुत अच्छी दी है, इसलिए मैंने देखा आपकी जबान की फसाहत और बलागत, आपका बोलने का वो लहजा, वो सेंस है। तो खैर वो सब कुछ अच्छा है आपका। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि आप गिरेसिव मत होइए किसी भी, कोई इंसान अगर आप गलत भी बोलता है तो उसको सिर्फ समझाइए, आप उसको समझा, उसको जो है अगर आपसे वो अगर आपकी बात बुरा मान जाता तो बेहतर ये है कि आप उससे गुफ्तगू ही मत कीजिए, और जो है नहीं तो अपनी जगह किसी और को बजाय कि उससे गुस्सा करने के और उससे जो है गलत गलत अल्फाज जो है निगेटिव अल्फाज बोलने के, तो इससे जो है आपकी वीडियो खाली जो है आप जो है उस पर डाल रहे हैं ना, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो इससे जो है दूसरा आदमी भी जो इल्म है वो भी सुनेगा इस वीडियो को, तो उससे वो मुतासिर होगा कि हमारे समाज की जो एक इस्लाह पर्सन है, इस्लाह का कैंडिडेट है जो दूसरों की इस्लाह करता है, तो उससे वो गलत मैसेज जाता है ना, ये कहने का मतलब है। तो हम गलत मैसेज से बचने की कोशिश करें ना। जी जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मगर उससे करना है लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। तो मगर वहाबी देवबंदी ऐसा काम ही ना करें कि जो है कि जिससे हमारा मैसेज रंग जाए। जो इल्मी शख्सियत है, जो वो सोचे कि ये आपके हवाले से जो है, जैसे आप इल्म पर्सन है, आप इल्म है, तो आप ही का हवाला दूसरा आदमी दे देगा, कहेगा वो तो इसी तरह की बातें करते हैं, आपको कौन से बहुत इल्म वाले हैं, तो आप तो बोल के हट गए, आप उस पर्सन के कंटेक्ट की बात की, दोनों में आपकी बहस हुई, जो भी हुई हम कहे बहुत हुज्जत भी हुई, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ से वीडियो वायरल हो गया। तो वीडियो वायरल हुआ तो बहुत से आलिम है, बहुत से स्कॉलर हैं, वो सारी इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो अगर दूसरे लोग समाज की इस्लाह करना चाह रहे हैं तो अगर कोई बात आ जाती है तो वो ये कहेंगे आपका जो जानने वाला है, आपका जो स्कॉलर है, जो तो बहुत सारी वीडियो हम सुनते हैं वो गाली से बात करता है, तो जब जो गिरेसिव हो जाता है, गुस्से से बात करता है, तो ये मैसेज गलत जाता है। तो इससे जो इल्मी शख्सियत मुतासिर होती है, तो इल्मी शख्सियत को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। हम अल्लाह ने आपको फसाहत दी है, बलागत दी है, सब कुछ दिया है, ठीक है, अच्छी आप अपनी फसाहत और बलागत का जो है परचम लहराइए, लोगों की इस्लाह कीजिए, समझाइए, बहुत अच्छा काम है भाई। इससे जो है हमारे ये हम आप जो काम कर रहे हैं जो है अकाबे रसूल वाला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि उसमें गिरेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये तो जाहिलों का काम है जी। कुरान की बहुत सी आयतें अच्छा, मेरी इन सख्त बातों से आपको बुरा लगा ना, और शायद बहुत सारे वहाबी देवबंदियों को भी बुरा लगता होगा, सच्चे दिल से बताइए आपको बुरा लगा या नहीं लगा? जो मेरी कड़वी बातें हैं, जो मेरी सख्त बातें हैं, बुरा लगा कि नहीं लगा? बुरा लगता तो हम कॉल क्यों करते आपके पास? नहीं, बस आपको मेरी इस्लाह के लिए शायद कॉल किया हो। नहीं, आप देखिए, हम भी एक स्कॉलर हैं, हम भी लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों को जो चीजें हैं बताते हैं, तो बहुत से हमको भी ऐसे लोग मिलते हैं कि अरे आप क्या बताते हैं, और मेरे दिमाग में कई सारी बातें आ गई, कई सारी भूल गया और कई सारी याद और दोबारा से याद आ गई। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे आप बता रहे थे तो हम सुन रहे, आप बोल रहे थे तो हम सिर्फ सुन रहे थे, आप बोला नहीं हमने, हम बोल रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद फिर आप भी बोलिए, हम भी सुनेंगे। और जी जी जी, और यही हम कह रहे हैं कि जो है होना ऐसे ही चाहिए कि कभी भी जो है हमको किसी चीज को इशू नहीं बना लेना चाहिए, कि वो ऐसा नहीं है कि वो हमारा आबाई झगड़ा है या वतन का झगड़ा है, कुछ से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी है कि हमने एक वकील खड़ा किया उसमें बहस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कोर्ट कचहरी दुनियावी मसला है, हम आप इस्लाह के लिए बनाए गए, इस्लाह करना है तो इस्लाह का जो तरीका है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया इस्लाह का कि नरम गुफ्तगू होनी चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए, और जो है गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी तो भी इरशाद भाई आपकी बात सुन के अच्छा लगा। तो मैसेज जो है गलत जाता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन फैलाया, उसमें जो है कितनी उन्होंने जो है मुसीबत सही, कितनी बहुत सी हदीसें हैं कि जो है वो जो है कई जगह घायल हो गए, तो फिर भी जो है उन्होंने उनके लिए भी आखिरी वक्त में जब फतह हो गया तब भी उन्होंने यही कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी वो ये अब यानी अगर चाहते तो अल्लाह ताला ने उनको सारी चीजें दी थी, सब कुछ सब मलका हासिल दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फतेह मक्के के बाद भी उन्होंने फिर जो है जब लोगों ने उनके जो है वो थे निगेटिव पर्सन थे, जो उनको जानने वाले थे, कहा कि आज तो आपके हाथ में जो फतेह मक्के का झंडा है, आप चाहिए तो लोगों को जो है कहिए तो आपको हलाकत कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला वही आ गई नहीं, तो ये फिर बाद में ये आयत नाज़िल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं तो दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा हूँ। तो ये हमको जो है अगर हम आप अल्लाह ने वो काम लिया है तो हम उसी को जो है अपना वो बना के चले, आइडियल बना के चलें कि कुछ भी हो समाज की सुने। अब भाई अगर वो गलत बोल रहा है
तो जो उसकी जो निगेटिव बात है उसको हम सुन के जो है बढ़ाता कर उसकी बात सुन ले, नहीं कि उसकी निगेटिव बात उसे बहस करना शुरू कर दें। अब बहस करेंगे तो बहस से कोई पहली बात तो उसकी हम जिस मौजू के लिए गए उसकी इस्लाह करने के लिए उसकी इस्लाह नहीं होगी। सबसे पहली बात तो यही है, वो जब हुज्जत पसंद पे आ गए तो सिर्फ हुज्जत करेगा, अब उससे जो है कोई नतीजा हासिल नहीं होगा जी। तो आप जिस मकसद से गए हैं, जो टारगेट लेके गए हैं कि इसको हम समझाएंगे, उसकी इस्लाह करेंगे, मेन चीज उसी से आप पूरे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब हम बाजार से कोई सौदा लेने गए हैं और हम जो है उस दुकान वाले से बहस करने लग गए, तो वो तो नहीं तो गुस्से में भगा देगा, नहीं तो सौदा नहीं देगा। तो हम जो घर से टारगेट लेके निकले हैं कि हम तो भाई सामान लेने के लिए निकले, तो हमको सामान भी नहीं लेना हुआ, तो हमारा जो सब चीज जाए, वक्त भी जाए हुआ, और जो है जो सामान लेने गया वो भी नहीं हमको मिला, तो सब कुछ तो हमारा ही इसका हमारे नुकसान हुआ ना। कहने का मतलब ये है, तो हम काम ऐसे करें कि जब काम करें तो उसका हमको रिजल्ट सामने आ जाए। रिजल्ट सामने आएगा तो जो है लोग देखेंगे, तो उससे जो है एक अच्छा नतीजा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो ये चीजें होनी चाहिए, हम ना कि खोल में बंद होके, ये खोल में बंद होके जो है बस वही करना जी। हाँ चलिए बोलिए, आप बोलना चाहते। बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सुन के, बहुत अच्छा लगा, आपके से बहुत अच्छे बोले, मगर जो सबक आपने मुझे पढ़ाया वो सबक आप खुद नहीं पढ़ते, अपने बड़ों को नहीं पढ़ाते, और जिन लोगों ने खुद हमारे नबी की शान में तौहीन की है, हमारे रसूल की शान में बेअदबी की है, उन लोगों के साथ आप हैं। समझे भाईजान, इरशाद भाई? आपने मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताब नामी पर्दा आपने पढ़ी है? जी जी, पर्दा नाम की किताब पढ़ी है? हाँ बोलिए जी, पढ़ा है क्या जी? अच्छा पढ़ी है। तो आपने एक उसमें वाकया पढ़ा होगा जिसमें अबुल आला मौदूदी ने हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़े गलत सलत अल्फाजों से बोला है। क्या वही अल्फाज मैं आपके लिए बोलूं तो क्या अच्छे लगेंगे? जैसे मैं आपके वालिद साहब का नाम क्या है? ये हमारे वालिद साहब अब्दुल मईन साहब है, वो इंतकाल कर गए। चलिए तो मैं उनको नहीं कहूँगा। पता नहीं वो सुन्नी सही अकीदा थे कि क्या थे, जब मैं उनके बारे में जानता ही नहीं तो मैं नहीं कह रहा। जैसे आप हैं मान लीजिए, या अबुल आला मौदूदी हैं, ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि फला शहर का या फला जगह का व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अरे यार क्या कर दिया यार, ये क्या करा आपने? देखो मुसलमानों, किताब का नाम सुन के हवा खसक गई है। हेलो, क्या हुआ? जी बोलिए। नहीं फरमाइए। हाँ वो एक कॉल था, तो मैं कॉल मेरे तरफ भी आ रहे हैं यार, मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। और हाँ मैं भी रिसीव नहीं किया, मैं काट दिया। मैं कहा आपकी बात पूरी हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे उनसे। जी बोलिए। हाँ क्या फरमा रहे थे आप, बोलिए। जैसे मैं कह रहा था कि जैसे अबुल आला मौदूदी साहब हैं, और मैं कहने लगूं कि जिस शहर के अबुल आला मौदूदी हो, उस शहर का नाम लेके या उनके वालिद का नाम लेके, उनके बाप का नाम लेके मैं कहने लगूं कि फला चरवाहे का बेटा या फला शहर का चरवाहा अबुल आला मौदूदी, समझे, उसने ऐसे ऐसे ये कानून बनाया। तो ये जो मैंने इसको चरवाहा बोला है, ये मैंने अदब में बोला है कि बेअदबी में? बेअदबी में बोला है आपने। बेअदबी में बोला है। वाकई सही बात। चरवाहा वही कहेगा जिसको अदब नहीं होगा, जिसको मौलाना अबुल आला मौदूदी की जो है इज्जत नहीं होगी, है ना? हाँ, अगर आपको भी कोई गलत बोलता है, आपको भी अगर कोई आपका नाम लेके बोलता है कि फला चरवाहा, फला जगह का चरवाहा या फला का बेटा चरवाहा, तो ये बेअदबी का अल्फाज है, ये अदब वाला नहीं है। समझे जनाब? जी बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात। तो मौलाना अबुल आला मौदूदी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का अनपढ़ चरवाहा बताया है। क्या ये बेअदब अल्फाज नहीं है? क्या ये बेअदबी नहीं है हमारे नबी की शान में? क्या ये हमारे नबी की शान में तौहीन नहीं है? है कि नहीं है? तो बताया हमने एक बात ये कहा, इंसान तहरीरी लिहाज से, गुफ्तगू लिहाज से कामिल नहीं है, उसको कामिल नहीं कहा जाएगा कहीं ना। तो फिर जमात में हो क्यों यार जिसकी ये तहरीर कामिल ना हो? ये नहीं कहा हम, आप पूरी बात नहीं सुनते, अधूरी बातें गुफ्तगू करते हैं, ये भी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए।
جو رسول پاک صلی جواب اللہ نہیں علیہ دیتا۔ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرے کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ مسلمان یہ تو بہت بڑی توہین ہے، یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ چرواہا بتایا ہے، معاذ اللہ ان پڑھ بھی بتایا ہے۔ ارے مولانا ابو العلا مودودی کو مولانا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اس کو بھی جاہل مودودی بولیں، ان پڑھ مودودی بولیں، گوار اور چرواہا مودودی بولیں، تو آپ بھی بولیے۔ مطلب آپ لیکن اچھی بات، اچھا کام بھی تو کیا ہوگا نا، اچھائی پہ نظر ڈالیے آپ نا۔ ارے ایک انسان جو انسان برا ہے تو اس کے اندر اچھائی بھی تو ہے نا۔ پھر میں وہی کہوں گا ارشاد بھائی اسکالر بنایا کس نے آپ کو؟ آپ صرف جو ہے پوزیٹو پہ نظر رکھیں، نیگیٹو پہ نظر نہیں رکھیں، نیگیٹو پہ نظر رکھیں، پوزیٹو پہ نظر نہیں رکھیں۔ ایک منٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ منافقین نماز پڑھا کرتے تھے، معلوم ہے؟ جی پڑھا کرتے تھے، بالکل حضور کے ساتھ جنگ بھی کرنے جاتے تھے، معلوم ہے؟ ہاں یہ بھی معلوم ہے، روزہ بھی رکھتے تھے، معلوم ہے؟ زکات بھی دیتے تھے، معلوم ہے؟ زکات بھی دیتے تھے، جو زکات بھی دیتے تھے، مسلمانوں جیسا لباسی پہ سب کچھ کرتے تھے۔ ہاں جن کے پاس مال تھا، مال والے تھے، جو صاحب نصاب تھے، وہ زکات بھی دیتے تھے، معلوم ہے؟ مطلب اسلام کے ہر قانون کو کرتے تھے جو بھی ان پہ فالو ہوتا تھا، مگر جب حکم ہوا لیکن کہ فلا منافق ہیں نکالو تو نکالا گیا۔ سنیے تنقیدی نظریہ نہیں نہ کرتے تھے، ان کی اصلاح بھی تو کرتے تھے۔ ارے بھائی میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا اور یہ ہمارے لیے قانون بن گیا۔ ارے سنو تو یار، رسول اللہ نے جو قانون بنا دیا، اللہ نے جو قانون بنا دیا، پھر ہم اس قانون کے الگ خلاف کریں کوئی کام؟ بتائیے، آپ بتائیے، جواب دے دیجیے۔ خلاف نہیں کریں گے ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ خلاف ہم تو وہی کر رہے ہیں نا، ہم تو وہی کر رہے ہیں، ہم تو مومن اور منافق کی پہچان کرا رہے ہیں، مومن کو الگ کر رہے ہیں، منافق کو الگ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں شکست نہ ہو۔ ہم مومن ہوں جتنے بھی ہوں، چاہے بھلے ہی 10 ہوں، الحمدللہ دل و جان سے ہم کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال دیں گے، ہم کامیاب نکلیں گے۔ صحیح ہے، ہاں تو وہی چیز کہہ رہے تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ارشاد صاحب، میں صرف آپ سے اصلاح کی نیت سے ہی بات کر رہا تھا جب سے اب تک، اور ابھی بھی اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں، سمجھے جناب؟ تو وہی کہنے کا مطلب ہے کہ اسکالر تو آپ بہت بڑے بن گئے اور بہت بڑی یونیورسٹی کے آپ اسکالر بھی ہیں۔ ہاں اس کا نام جو ہے وہ شاید پورے ہندوستان میں، تو ہندوستان میں یہ دیگر جگہوں پہ بھی اس کا نام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اپنے آپ میں ایک شناخت ہے۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی یونیورسٹی کا آپ اسکالر ہیں، پر آپ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں پہچان سکے۔ بالکل پہچان، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ دیکھیے ابو العلا مودودی نے کتاب نام پردہ، اس میں جو یہ توہین کی ہے، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ توہین ہے، ہم توہین ہے تو پھر کافر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا، حضور کو ذرہ برابر تکلیف دینے والا، مسلمانوں کو ذرہ برابر تکلیف دینے والا، یہ کیسا شخص ہے؟ جو آپ مجھے پاٹ پڑھا رہے تھے اسی کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ میں سنتا چلا جا رہا تھا، اسی لیے تاکہ میں آپ کی بات کا جواب دے سکوں۔ جو پارٹ آپ ہمیں پڑھاتے ہو، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جو آپ ہمیں پڑھا رہے ہو، جو آپ ہمیں درس دے رہے ہو، وہ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو وہی تو بتا رہے ہیں، کرنا انسان جو اپنی اصلاح کرتا رہے، ایمان کو تازہ کرتا رہے، وہ تو کرنا ہی ہے انسان کے لیے۔ تو پھر ابو العلا مودودی کو مارو ٹھوکر، کیونکہ اس نے آپ کے نبی کی شان میں توہین کی ہے، آپ کے نبی کو ان پڑھ بتایا ہے۔ ارے ہمارے نبی ہی ان پڑھ ہوتے تو پوری کائنات ان پڑھ ہوتی یار۔ تو ہم نے بھی تو اس بات کا آپ کو جواب دیا ہے نا، ہم نے تو دونوں بات کہی ہے۔ ماری ٹھوکر نا، آپ پھر بھی اسی کی جماعت میں ہیں، اسی کی بنائی ہوئی جماعت میں ہیں۔ مطلب کوئی چیز کوئی ہے کہ ہم کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دیا جائے، یا دوسرے کی نظر میں یہاں اس نے پھینک دیا، ایسا نہیں، یہ چیز اس سے یہ مراد نہیں نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ جا کے توبہ کر لیجئے، غلامی میں آ جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یار جو ہمارے نبی کو ہی انپڑھ بتا رہا ہے اور چرواہا بتا رہا ہے وہ کہاں کا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ یہ ان کافروں سے زیادہ بدتر ہے جو بیچارے غیر مسلم ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کلمے کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ سمجھے بھائی جان ارشاد بھائی؟ ہاں، تبھی آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سمجھے، آپ اگر حضور کے امتی ہیں تو پھر تھوڑا سا ہوش میں آئیے بھائی جان۔ میں روز آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، میں روز آپ کی اصلاح کروں گا انشاءاللہ۔ سمجھے ارشاد بھائی؟ بولیے۔ ہاں، پھر دنیا میں وفاداری کے چرچے گونجیں گے آپ کے، اور نہ جانے کتنے جو انجان لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، انشاءاللہ نہ جانے کتنوں کی آپ اصلاح فرما دیں گے، اور ان لوگوں کے ذریعے سے آپ کی اور میری مغفرت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تو گستاخ رسول جو بھی ہو، گستاخ رسول جو بھی ہو، سمجھے بھائی جان؟ بولیے جی۔ ہاں، اس سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گستاخ رسول کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ سمجھے بھائی جان؟ جی سمجھا۔ آپ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، بھائی جان کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا غلط بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ بزرگ آدمی ہیں۔ کتنے کیا آپ 18 سال کے ہیں؟ ہم بتایا کہ ہمارے 31 رننگ ہے، تو آپ بھی ہوں گے 27 28 کے ہوں گے۔ کتنے بولے 30؟ آپ 31 31 آپ 31 کے ہیں بھائی؟ جی، تو شاید میں آپ سے بڑا بھی ہو سکتا ہوں۔ اتنی لمبی گفتگو ہو گئی اسی لیے کہا ہے کہ جو صرف بولتے نہیں جناب، ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ آپ کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ علی گڑھ میں بھی لوگ، ہمارے اسکالر بہت سارے لوگ آتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے، بولتے بہت زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں۔ یہ ہماری امت، یہ ہماری علم میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں بولتا بھی برابر ہوں، سمجھتا بھی برابر ہوں، الحمدللہ۔ جی 31 آپ ابھی کہہ رہے بہت بڑے ہیں۔ نہیں جناب، اس ٹائم پہ آپ کی آواز ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی جو اس ٹائم پہ بتا رہے تھے۔ کوئی بات یا تو آپ کی طرف سے ہونے لگی تھی یا میری طرف سے ہونے لگی تھی۔ جی آپ نے شاید اس ٹائم پہ کچھ اور بولا تھا۔ میں اور آپ دونوں سیم عمر کے ہیں، اچھا، مگر آپ کی آواز بھاری زیادہ ہے، اور آپ جو ہیں شاید ہائٹ میں لمبے تڑنگے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو دیکھیے ارشاد صاحب، میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا شخص مومن نہیں رہتا، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اے ایمان والو، تم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جی صحیح، بالکل صحیح۔ تو جب پکارنے کو ہی منع کیا ہے تو پھر ابو الاعلیٰ مودودی نے جو ہمارے نبی کو معاذ اللہ عرب کا ان پڑھ چرواہا بتایا، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں مکاروں پر اللہ کی لعنت ہو، اور پوری دنیا کے ایمان والوں کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو ابو الاعلیٰ مودودی پر۔ پھر اس ابو الاعلیٰ مودودی نے ہمارے نبی کو ان پڑھ کیسے بتا دیا؟ آپ بتائیے بھائی جان، آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں۔ کیا جواب دوں؟ اب جواب تو دے دیا، پھر جواب ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ اچھے اسکالر بند ہو جاتے ہیں، یہاں کے زبانیں بند ہو جاتی ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بات یہاں میرے آقا کی شان و عظمت کی۔ یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپنے علم کو اونچا کر رہے ہیں۔ میں اپنے نبی کی محبت کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو، توبہ کر کے مسلمانوں میں نبی کا محبت کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ جو اپنا دعوی، تو یہ تو فرعونی دعویٰ ہو گیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کفر والوں کے ساتھ ہیں، آپ کفر والوں کے ساتھ ہیں، اور فرعون مجھے بتا رہے ہیں۔ نہیں،
बहुत बिल्ला, मैं ये गलत अरे भाई बात ही नहीं बोलता हूँ। ना फिरौनी दावा। नहीं नहीं, मैं वही ये बताने की कहता हूँ, कोशिश दावा कर रहे हो नहीं ना। करना चाहिए, अपने इल्म पे दावा नहीं करना चाहिए किसी को भी, कभी भी हो तो। देखो सुनो, आप बड़ी हमेशा अच्छी ये अच्छी तो- बातें कर रहे थे, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अब वही चीज मैंने जब तुम्हारे घर से बता दी तो अब आपके पास जवाब क्या रह गया? क्योंकि अभी घर आप पे मुझे बता बड़ी दी अच्छी अच्छी मतलब? बातें बता रहे थे, बड़ी अच्छी नसीहत कर रहे थे मेरे लिए, और जी, वही जी। नसीहत मैंने बड़े अच्छे से सुनी और लोगों ने भी सुनी और हम भी सुन तो रहे सुन रहे हैं हैं, आपकी बात। सुनेंगे, समझे? हम भी ये आपकी बात ऑडियो सुन ही रिकॉर्ड रहे हो हैं। रहा है, समझे? और वही चीज फिर मैंने आपके घर से आपको सुना दी। इसीलिए तो मैंने पूछा था कि ईमानदारी के साथ आप बताइए कि आप किस हम्म। गिरोह के साथ हैं, किस जमात के साथ हैं। तो आपने बताया कि मैं ISO से जुड़ा नहीं हुआ नहीं, हूँ। हम आपकी बात रद्द नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, यही रद्द होगी यही भी नहीं तो समझ इंशाअल्लाह। का फेर है, यही तो समझ का फेर है। जब आदमी बात नहीं, आदमी एक दूसरा आदमी एक दूसरे मगर मैं की बात आपको नहीं समझाना चाह रहा हूँ, अबुल आला मौदूदी की जमात से निकल जाइए, तौबा कर लीजिए इस जमात से, और तो सुन्नी हनफी निकलने का मतलब क्या है? मतलब कि निकलने का मतलब ये है कि सच्चे दिल से तौबा कीजिए। शादीशुदा है तो तजदीद ईमान के साथ साथ तजदीद निकाह भी कीजिए, और ऐलान कर दीजिए कि मैंने इस जमात को छोड़ा। हाँ, इतना हो सकता है कि जो उस कमेटी की तरफ से कुछ वजीफा वगैरह मिलता होगा वो नहीं आएगा। ऐलान कर दीजिए तौबा का, और फिर मुसलमानों को समझाइए, यहाँ की दौलत ठोकर पे मारिए, यहाँ की दौलत पे मत जाइए। यहाँ तो अगर भूखे प्यासे रह के अगर दिल का काम कर लिया, हम मतलब ये कहने का मतलब है कि इंसान जो कोई भी काम करता है तो किसी NGO से जुड़ ही के करता है ना। तो बेशक आपने मना किया था कि मैं ये सब नहीं जानता, मैं इसको नहीं मानता, मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हो आप। मानने का मतलब ये मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब आप भी इतनी बातें बोल रहे हैं तो आपने भी किसी मदारिस से सीखा है ना। इरशाद भाई, कि ऊपर से सीख के आदमी इरशाद भाई, कहीं से भी देखिए जब कोई इल्म वाला होता है ना तो अपने इल्म के हिसाब से बहुत कुछ चौंपे देने की कोशिश करता है, मगर वो सारे वो बात नहीं, जो बात कही जा रही है उस मौजू पे बात कीजिए ना। आदत टॉपिक पे बात करेंगे तो क्या फायदा? मेरा मौजू ही कुछ नहीं रहता है, मेरा यही मौजू है कि गुस्ताखे रसूलों से बचो, अपने ईमान को बचाओ। वो तो भाई यही मेरा मौजू रहता है, गुस्ताखे रसूलों से बचो और अपने ईमान को बचाओ। जो गलत